बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खूब हस्ती हमें ये शुमा अजीज़ान असर शुमा बखैर। असर शुमा हम बखैर। खूब यकी खूब अजरबतुल सलाम शुमा खूब हस्ती भले अजरबतुल हस्ती शुमा मशगूल हस्ती। खाहर अजरा खातून सलाम शुमा खूब हस्ती। वालेकुम अस्सलाम. Bale man खूबम. खानवादे शुमा खूब हस्तान। Bale ana खूबन. खुश में गुजरे। Bale जिंदगी खुश में गुजरत. असर शुमा शुमा खूबी. बखैर असरे शुमा हम बेखैर. इंशाअल्लाह वक्त खूबी व ज़िंदगी पुरबरकती दाश्ते बाशी। शुमा हम चनीन. शुमा दारी चिकार मिकुनी दारम मन तकलीफ में नविसम. दारम तकलीफ मिनवीसा दारम तकलीफ तकलीफ में मिनवीसा नविसम. जी हो। शुमा अहले कुजा हस्ती Man ele गुजरात अस्तम. शुमा किताब चंदुम मी खानी Man किताबे दुवम रामी खानम. अजदर सराजी हस्ती। Bale az 10,000 राजी अस्तम. खूब अजरा खातून खूब शुमा नहार खुर्दी Bale नार कुर्दम. नहार ची खुर्दीत मन नहार करी कुर्दम. खैली खुश मजे بود Bale खुशमदे بود. खूब अजरबतुल शुमा उमादी भले आगा बबख्शीद. सलाम खूब हस्ती शुमा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मन खुबम शुमा खूबी. मनम खूब हस्ता शुमा दारी चिकार मिकुनी दारम बा आज शुमा सोबत मिकुनम. मन बा शुमा सोहबत मिकुनम। खूब शुमा बफरमाई शुमा नहार ची खुर्दी मन नहार मटर पुलाव खुर्दम. भले मन मटर पुलाव खैली खुश मजे بود भले आगा खुश मजे بود. शुमा चा खुर्दी. من گوشت خوردم عصر شما بخیر असली शुमा हम बखैर. شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی मन किताबे फारसी दोगुम रामी खानम. خیلی خوب شما زبان فارسی دوست داری भले मन जबान फारसी रा खैली दूज दारम. انشالله موفق باشید ममनून आगा. खुदावंद इमरोज बेहतरीन और खूब तरीन रोज जिंदगी शुमा बाशे. انشالله شما هم همچنین خب تحسین فاطمه سلام شما خوب هستی بله هستی صدای من میرسه کنیز فاطمه سلام شما خوب هستی वालेकुम सलाम मनम खुबम अल्हम्दुलिल्लाह शुमा खूबी. کنیز فاطمه मेरी आवाज आ तहसीन फातिमे सदाय मन میرسه भले आगा. سلام خوب هستی شما भले अलैका सलाम. भले عصر मन شما खुबम بخیر शुमा खुबी. منم خوب هستم ممنون عصر شما بخیر असरे शुमा हम बेखैर. یه دقیقه صدای شما قطع شد الان بگو چه فرمودی भले عصر شما بخیر असरे शुमा हम बेखैर. انشالله وقت خوبی داشته باشید शुमा हम चनीन आगा. نهار خوردی شما भले मन नहार खुर्दम. शुमा नहार खुर्दी. بله من نهار خوردم شما نهار چی خوردی मन नहार सब्जी खुर्दम. خیلی خوب خب شما اهل کجا هستی मन अहले इलाहाबाद हस्तम. خانواده شما خوب هستند
بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. خیلی خوب، شما بفرمایید. شما کتاب چندم میخوانی؟ الان من کتاب دوم میخوانم. شما از زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. خیلی خوب، انشالله موفق باشید. کنیز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. سلام علیکم آقا. منم خوبم. به شما چه بگم؟ صبح شما بخیر بگویم یا عصر شما بخیر بگویم؟ شما عصر خوبی؟ شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشید. شما همچنین. شما داری شکار میکنی؟ داری غذا میخوری؟ بله آقا، من غذا میخورم. بخور دیگه، چیکار کنیم. زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب، خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ دارم من از شما را صحبت میکنم. خوب، شما بفرمایید. شما درس ها یاد میگیری؟ بله. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. شما بفرمایید. شما هر روز مدرسه میروی؟ بله من هر روز مدرسه میروم. دانشگاه شما ممنون. دانشگاه شما چند شنبه تعطیل است؟ دانشگاه من دو شنبه تعطیل است. بله. امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. نه، چهار شنبه است. نه دیگه، امروز سه شنبه است. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. بله امروز سه شنبه است. आगा आज तो ट्यूसडे है ना. بله دیگه سه شنبه. بله. امروز سه شنبه است. پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا جمعه است. نه دیگه پنجشنبه. پنجشنبه است. بله. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز یک شنبه بود. یک شنبه بود. پریروز یک شنبه بود. آقای زمین شما خوب هستی؟ آقا अभी बाबा की कॉल आ रही है, मैं अभी بله اشکالی ندارد. بله خوب، شما خوب هستی نیاز بانو؟ سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. نهار چی خوردی آقا؟ من نهار گوشت خوردم. شما چه خوردی؟ من روزه هستم. انشالله قبول باشه. شما دیشب چه خوردی؟ من دیشب عدس برنج خوردم. امشب چه میخوری؟ امشب تحری خوردم. دیشب چه خوردی؟ آقا دیشب عدس برنج خوردم. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز جمعه بود. نه دیگه پریروز یک شنبه بود. بله آقا پریروز خوردم. پریروز یک شنبه بود. امروز سه شنبه است. شما بفرمایید شما چند شنبه بازار می روی؟ من یک شنبه بازار می روم. مدرسه شما چند شنبه تعطیل است؟ مدرسه روز جمعه ها تعطیل است. خب شما بفرمایید شما زبان فارسی چند شنبه کلاس می روی؟ من روز کلاس می روم. هر روز ها کلاس می روم. بله. از درس راضی هستی؟ خیلی راضی هستی؟ بله من که راضی هستم. بله. شما هم راضی باشید.
خوب خواهر زهین فاطمه شما چطور؟ خوب هستی شما؟ عصر شما بخیر. السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. خوبی شما؟ منم خوب هستم ممنون. انشالله زندگی پربرکتی داشته باشید. این شما هم همچنین. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ دارم بعد شما را صحبت میکنم. با شما را نہیں با شما یا با کہتے ہیں خالی با شما صحبت میکنم. با شما صحبت میکنم. بله شما بفرمایید شما کدام کتاب میخوانی؟ من کتاب دوم میخونم. یکی از جمله بسازید. شما کدام کتاب میخوانی؟ من بگو من یکی از کتاب‌های فارسی میخوانم. من یکی از کتاب فارسی رو کتاب نه چی اشتباه گفتی؟ من یکی از چی اشتباه چی بود؟ हाँ अगर जमा आएगी بله من یکی از کتاب‌های فارسی یکی از के बाद जमा من یکی از کتاب‌های فارسی میخوانم क्योंकि एक one of these books بله इसका मतलब है one of बहुत सिंपल एक इनमें से एक من یکی از کتاب‌های فارسی میخوانم من یکی از کتاب‌های فارسی میخوانم. خب شما بفرمایید نهار چی خوردی؟ من نهار گوشت خوردم. خوشمزه بود؟ بله خوشمزه. بله غنچه فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. و علیکم السلام. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم صحبت میکنم. بله از درس ها راضی هستی؟ یک دقیقه. خب شما بفرمایید شما کدام لباس میپوشی؟ یکی از به جمله بسازید. بله بله خب با یکی از جمله بسازید. شما کدام لباس میپوشی؟ من یکی از لباس های گرم میپوشم. من یکی از لباس چی اشتباه بود اینجا؟ اشتباهی ندیدی؟ من یکی از لباس های گرم یکی از لباس های گرم میپوشم. بله خیلی خوب من یکی از لباس های گرم میپوشم. خب شما بفرمایید. بله آشکار فاطمه سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند. خانواده چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ آقا ये वाला सवाल ना किया करें. चरा ये हमें नहीं आता. तो आप मतलब सीखे हैं दारी چه کار میکنی؟ دارم غذا میخورم دارم درس میخوانم دارم با شما صحبت میکنم. دارم توبت میکنم آقا. दारुम तौबत मिलना पहले यही बता दूं फिर बाद में बात शुरू करता हूँ. देखिए मैंने बताया था एक होता है हाल गौर से सुनिएगा फिर बाद में मत कहिएगा कि ये मत पूछिएगा ये मुझे नहीं आता. आपने वीडियो तो देखी नहीं आप गौर कीजिए. एक होता है हाल याद कैसे मी खुराम मी खुरान बोलिए मी कुरान भले मी खुरी मी खुरीद मी खुरम खुरी मी खुरम ये वही पहले का मुसलसल सीखते हैं. समझ रहे हैं आप? तो आवाज आ रही है? भले
ये वही फेल है जो हम मुसलसल बोलते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसे कहते हैं हाल। इसे क्या कहते जी जी जी। हैं? हाल। अभी तक जब मन फी कुरान, मन दस मी खाना, मन बाजार मी रवाम, मन रोजनामे में खाना, मन किताब में खाना, मन गज़ा में कदम, मन लिबास में शुयाम, ये सब क्या है? हाल। कैसे बनता है? मुजारे के शुरू में मी बढ़ाने से। लेकिन एक होता है हाल इस्तिमरारी। हाल और तो सुनिएगा, हाल इस्तिमरारी यानी कि अभी अभी काम जो हुआ है थोड़ी देर पहले, वो वाला। प्रेजेंट टेंस लिखोगे पी ए आर PER PRESENT PER ऐसे पी ई आर SENT continuous पी आर ई PRESENT present प्रेजेंट कंटिन्यूअस सी ओ एन जी। कैसे? TINI OUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए मी कुरान मैं खाता हूं, मी कुरान वो खाते हैं, लेकिन खाता हूं जरूरी नहीं कि अभी खा रहा हूं। उसके लिए आएगा दाराद। दाराद की गर्दान इस हाल के शुरू में बढ़ा दीजिए। दाराद की गर्दान इसके शुरू में बढ़ा दीजिए। दाराद की गर्दान का मतलब ये नहीं कि खाली दाराद बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे नूनदान ये लगा था ऐसे ही बढ़ाना है। इसकी गर्दान बढ़ानी है। दाराद, दारान, दारी, दारीद। आजकल फातिमे में चलो सोहबत ने भी कुनी। भले आगा, हम दिमाग लगा रहे हैं आगा जरा। दारन दारन दारी। याद है पहले में कुछ नहीं, दूसरे में नूनदान, तीसरे में तू के साथ या ये शुमा के साथ बिना, मन के साथ मीम, ये सब वही कायदा। उसी के साथ दारत की गर्दान इसके शुरू में लगा दीजिए। दारत मी खुरान, दारत मी खुरान, दारत मी खुरान, दारत मी खुरान, दारी मी खुरी, दारी मी खुरी, दारी मी खुरीद, दाराम मी खुराम, दारीन मी खुरीम। देखा आपने? इसके शुरू में दारा की गर्दान। मैं कहूँ आपको दारी छे में खुरी, दारी छे में खुरी। आप क्या खा रही हैं? क्या खा रही हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या खा रही हैं? तो आपके दाराम गज़ा मी खुराम, दाराम गज़ा मी खुराम। मैं कहूँ ऊ दारा चिकार भी कोना, आपके ऊ दारा रोजनामे में खाना। यानी अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, लगातार कंटिन्यूअस। अभी मी खुरान जी जी जी। वो खा रहा है, नहीं दारा मी खुरान वो खाता है, और दारा मी खुरान वो खा रहा है। जी ये इतना आसान है ये। अब मत कहना कि ये दारत वाले से न पूछिए, मुझसे नहीं आता। इतना आसान है। इसके शुरू में दारत की गर्दान बढ़ानी है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, दारी शिकार भी कुनी, दारी शिकार भी कुनी, तो आप कहिए दाराम फसा भी खुराम, दाराम दास भी खाना। हाँ, यानी कि अभी अब समझ में आ गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये अभी का हाल पूछ रहे हैं आप। जी 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 जस्ट वाला। जी जी ओके लगातार। आगा, शुक्रिया बहुत बहुत। आप ये बताइए कल की वीडियो पूरी किसने नहीं देखी? कल की जी वीडियो कल आगा की हमने बात- कल किया था। नहीं, वीडियो पूरी देखी थी। नहीं तो आगा कल तो हम मौजूद थे ना क्लास में। मौजूद होना अलग है। जब क्लास में होते हैं वो ठीक है, लेकिन जब होने के बाद एक दफा वीडियो गौर से सुन लें तो फिर सब कुछ समझ में आता है, फिर और अच्छा जी, करके जी। समझ में आ जाता है। क्लास में रहो और उसे सुनो, लेकिन नहीं सुना, सुनते या उस टाइम मौजूद होते तो शायद आप गलती पकड़ पाते। कल मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। बताइए क्या? वर्ड मीनिंग लिखिए, दर्स दवाज़दहूं। दर्स दवाज़दहूं का क्या मतलब? किस पर? उस पे है, मुसाफिरात पे है। बाद में दर्स का उन्वान क्या है? मुसाफिरत है। मुसाफिरात मुसाफिरात यानी सफर। गौर से सुनिएगा। कल मैंने जो गलती की है वो ये की है कि कार्य को मैं जहन में, वर्ड है कार्य, जहन में कार्य शिबे कार्य, मेरे जहन में पहुंचा जजीरे शिबे जजीरे।
आगा महाद्वीप है ना इसका मतलब? नहीं 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 नहीं, यही गलती की कल मैंने कि कारा शिवे कारा वर्ड है, एक है कारा, एक है शिवे कार्य, एक है शिवे कार्य। इस वर्ड को देख के, क्योंकि इसमें भी कार्य शिवे कार्य कहा जाता है, इसको देख के मेरा जहन में वर्ड ये था, जहन चला गया जजीरे शिवे जजीरे की तरफ। वो जो मैंने मीनिंग लिखवाए हैं वो जजीरे के और शिवे जजीरे के हैं, वहां पे कर दीजिए जजीरा शिवे जजीरा। जजीरा वो कि जिसके चारों तरफ पानी हो, और शिवे जजीरा जिसके एक तरफ खुश्की हो बाकी तरफ पानी। उसे वर्ड बदल दीजिए, कार्य के माना नहीं है वो। वही कंटिनेंट है ना जी कार्य का मानी कंटिनेंट। काय के आगा महाद्वीप पूरी दुनिया के 5 हिस्सों में तकसीम किया है। हाँ भले आगा वही ना कंटिनेंट जी भले आगा उसे कंटिनेंट मेनलैंड, कॉन्टिनेंट मेनलैंड उसे मेनलैंड कहते हैं। नहीं, इस पूरी दुनिया को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। उनमें से एक हिस्सा मतलब हमारा कार्य, कार्य कहते हैं इलाका या क्या कहेंगे, महाद्वीप, महाद्वीप। चलिए द्वीप नहीं, हाँ महाद्वीप कहेंगे इसे। चलिए जो भी कहते हैं आगा हमने गौर किया था लेकिन हमने सोचा शायद हमारा ही गलत होगा, इसलिए हम पूरे टाइम ऐसे ही बैठे। क्यों हम गलत क्यों नहीं हो सकते? नहीं तो जजीरा नहीं लिखा है वहाँ पे, महाद्वीप लिखना है क्या? जब वो नहीं, मीनिंग जो मैंने लिखवाई है उस वर्ड को बदल दीजिए, कार्य शिवे कार्य की जगह वहां जजीरा शिवे जजीरा कर दीजिए। जजीरे के माना जिसके चारों तरफ पानी हो, शिवे जजीरा जिसके एक तरफ खुश्की हो। फिर ये 12वीं दर्स के अलग से माना लिखिए। कार्य के माना है मेनलैंड। पूरी दुनिया के 5 हिस्सों में तकसीम किया है। हर उन 5 हिस्सों में से एक को कार्य कहा जाता है, कार्य। इलाका, कार्य है वो इलाका। जो इन्होंने क्या कहा, हिंदी वर्ड क्या कहा? महाद्वीप। महाद्वीप, बहरहाल मेनलैंड। कार्य यानी कार्य, कार्य यानी मेनलैंड लिखा। फिर मैंने बाद में ध्यान आया मुझे, क्या मैंने कार्य शिवे कार्य के माना लिखवाया। सोचा था मैंने जजीरे शिवे जजीरे। जजीरा कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो, टापू, और शिवे जजीरा जिसके सब तरफ पानी हो, एक तरफ खुश्की से मिला हुआ हो। तो कार्य एक तरफ खुशकी से मिला हुआ, उसे कार्य आगा उसे आप लिख दें, आगा आप लिख दें, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लिख दें और जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो मैं बता तो रहा हूँ, कार्य का माना है मेनलैंड, वो जो मैंने कल लिखवा दिया था जजीरे। हाँ आप लिख देना, सबका जो कंफ्यूजन हो रहा है वो दूर हो जाएगा। यानी जो समझ गए वो तो ठीक ही है। आगा महाद्वीप लिखवा दीजिए हिंदी में, महाद्वीप। चलिए जजीरे, जजीरे यानी टापू जिसके चारों तरफ पानी हो। जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी हो उसे जजीरे कहते हैं। और शिवे जजीरे जिसके एक तरफ खुश्की हो बाकी तरफ पानी, शिवे जजीरे, शिवे जजीरे, शिवे जजीरे, शिवे जजीरे यानी क्या बोलेंगे? फिर टापू तो इससे बोलेंगे जिसके एक तरफ खुश्की हो, चार बाकी जगह पानी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में से जी? किसी को नहीं पता इंग्लिश में क्या कहेंगे? और बाकी तरफ बाकी जगह पानी। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ आगा आ रही है, लेकिन आगा नहीं पता इसका कि क्या कहेंगे। हिंदी भी नहीं पता इसकी। जिसे कहते हैं मेनलैंड, यानी हिंदी में क्या वर्ड था? कार्य यानी मेनलैंड। इसका क्या वर्ड है हिंदी में? महाद्वीप। महाद्वीप, आगा मेनलैंड भी कहते हैं लेकिन कंटिनेंट बोलते हैं, कंटिनेंट। चलिए बहरहाल जो भी है आप वो लिख लीजिए, कंटिनेंट।
महाद्वीप, बस इतना सोच लीजिए जो मैं वर्ड नहीं कह पा रहा, लेकिन दुनिया को 5 हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्से को कार्य कहा जाता है। जजीरे शिबे जजीरे जो मैंने कल ये लिखवाया था ना, यहाँ पे मैंने कार्य शिबे कार्य लिख दिया था, बस ये हटा के जजीरे शिबे जजीरे कर दीजिए, मीनिंग वही है। कार्य के माना बदल का अलग लिख लीजिए। लिखा आप लोगों ने? भले अब ठीक है जी। कार्य में मुल्क भी आते हैं, शहर भी आते हैं, गांव भी आते हैं, सब शामिल होते हैं कार्य में। जैसे कार्य है ये, इसमें इंडिया का ये इलाके सब आएंगे ना, इंडिया पाकिस्तान वगैरह ये सब इसमें आएंगे जी। कार्य पाक को नाम कार्य में सब कुछ आ जाता है। ईश्वर यानी मुल्क, शहर यानी शहर, रूस्ता यानी गांव। और क्या वर्ड लिखवाया था? दफ्तर मुसाफिरती, ट्रैवल ऑफिस जी, मुसाफिरती, दफ्तर मुसाफिरती। हाँ, वो जो थर्ड वर्ड लिखवाया था ना, एक बार रिपीट कीजिएगा उसको। कौन सा? वो जिसके जजीरे के स्टार्ट में क्या लफ्ज लिखा था वो? शिबे जजीरे, कार्य शिबे जजीरे 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 शिबे जजीरे, दफ्तर मुसाफिरती। शायद आइलैंड को कहते होंगे। नहीं, आइलैंड को तो जजीरा कहते हैं। दफ्तर मुसाफिरती कहते हैं किसे जी? ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल ऑफिस, TRAVEL ट्रैवल। TRAVEL ट्रैवल। मोहम्मद अली आए हैं जी जनाब, सलाम अलैकुम। TRAVEL ट्रैवल एजेंसी, AGENCY ट्रैवल एजेंसी, दफ्तर मुसाफिरती। उसके बाद है बिलीज, बिलीज यानी टिकट, बिलीज यानी टिकट। बिलीज टिकट, टिकट, बिलीज यानी टिकट। उसके बाद क्या वर्ड है? कतारे शहरी कह लो या मेट्रो कह लो? मेट्रो। कतारे शहरी कह लीजिए, कतारे शहरी, कतारे शहरी, कतारे शहरी या मेट्रो। मेट्रो मत कहिएगा, मेट्रो, मेट्रो एक ही बात है। मेट्रो, मेट्रो METRO, मेट्रो। अच्छा, मेट्रो, मेट्रो ट्रेन को कहते हैं कतार शहरिया, मेट्रो। मेट्रो। उसके बाद उत्तुबूस, उत्तुबूस के भी पूरी शुमा, उत्तुबूस सुने यानी आगा, हमारी आवाज तो नहीं आई थी अभी कोई? नहीं आपकी आवाज नहीं आई। क्यों? ठीक है, हमारा माइक खुला हुआ था ना, हम कुछ ना कुछ कर रहे थे इसलिए। उत्तुबूस यानी बस, बस उत्तुबूस यानी बस। उसके बाद टर्मिनल, टर्मिनल ये अभी लिखवाते हैं ना। आपको नाम नविष्टित आगा कल ही का ये तो लिखवाए हुए हैं, रायहान तक लिखवा चुके थे। अब मैंने कहा शायद कोई पूरा भटका है और नए दर्श से देखना चाहे वीडियो, उसमें किताबें कार कराई थी, मैंने कहा था थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, फिर से लिखवा दूंगा। हम ये आगा भूले भटके अब लिख रहे हैं बैठ के। टर्मिनल देख लीजिए, बस डिपो जी, बस डिपो। टर्मिनल यानी बस डिपो। अच्छा, टर्मिनल, टर्मिनल कह लीजिए या पायाने मुसाफिर बरी। टर्मिनल आप समझ रहे होंगे, टर्मिनल की टांग तोड़ी गई है। टर्मिनल पायाने
देखिए पायाने मुसाफिर बरी, मुसाफिर बरी, पायाने मुसाफिर बरी, पायाने मुसाफिर बरी, पायाने मुसाफिर बरी, मुसाफिर बरी, बरी, पायाने मुसाफिर बरी यानी वही टर्मिनल, टर्मिनल यानी बस डिपो, बस डिपो कहेंगे, बस बस स्टॉप बने, बस स्टॉप नहीं, बस स्टॉप नहीं, बस डिपो जहाँ पे सारी बसें खड़ी होती है। जहाँ से बन के चलती है ना आगा, मम्बा, उर्दू में मम्बा। डिपो सही है। डिपोर्ट होता है, अगर टी भी रहेगा आगे। और आगा मुझे लग रहा है हर चीज का मम्बे को ही कहते हैं शायद, टर्मिनल यानी कि। हाँ, पायाने मुसाफिर बरी कह लीजिए, चाहे मुसाफिर टर्मिनल कह लीजिए, एक ही बात है। उसके बाद क्या है मुसाफिर, मुसाफिर यानी सफर करने वाला, मुसाफिर, भले मुसाफिर यानी सफर करने वाला हूँ। सफर करने वाला, ट्रैवलर बोलेंगे, पैसेंजर, पैसेंजर, सफर करने वाला। की PASS ENGER, पैसेंजर। पैसेंजर, मुसाफिर यानी पैसेंजर जी। उसके बाद ईदगाह राहन यानी रेलवे स्टेशन, ईदगाह राह यानी रास्ता, राय आहन लोहे का रास्ता, लोहे के रास्ते का स्टॉप, ईदगाह स्टॉप यानी इसे कहते हैं रेलवे स्टेशन को। टर्मिनल बस स्टॉप है ना? नहीं, बस स्टॉप तो सड़कों पे भी किनारे पे बने हुए होते हैं, नहीं जहां से बन के चलती हैं मेन, यानी बस स्टेशन, बस अड्डा, जी जी बस अड्डा। बस अड्डा, ईदगाह राह आहन, ईदगाह राह आहन यानी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को कहते हैं ईदगाह राह आहन। आपको नाम भले आगा भले। ईदगाह उत्तबूस भी तो होता है बस जी स्टेशन। जी बस स्टॉप को कहते हैं ईदगाह, लेकिन ईदगाह का मतलब ये होता है रास्ते में जहां जहां रुकने का अड्डे बने हुए हैं, स्टॉप बने हुए हैं। जैसे यहाँ हाईवे के ऊपर एक गांव पड़ा, उसके बराबर में रुक गई, वहां पे स्टॉप बना हुआ है, वो स्टॉप को कहते हैं ईदगाह। लेकिन जो मेन शहर में होती है, हर शहर में बड़ा, जहां से अलग अलग इलाकों के लिए बसें बन के चलती हैं, उसे कहते हैं वो टर्मिनल। नहीं समझी? आगे समझ गए। भले। उसके बाद है राह, यानी वे, राह कह लीजिए चाहे जाते कह लीजिए, यानी सड़क, जाते, जी जाते यानी कोई हाईवे, हाईवे सड़क, सड़क यानी रोड, और राह यानी रास्ता, है ना? नहीं वो एक ही बात है, राह कह लीजिए चाहे जाते कह लीजिए, सड़क, सड़क, रोड, ROAD, रोड, राह कह लीजिए चाहे जाते। उसके बाद है, ये तो पहले आ चुका है ना, शुरू यानी भीड़, शुरू यानी ट्रैफिक, खलवत यानी ट्रैफिक ना होगा, खलवत, अगर शुलूक यानी शुरू भीड़, यानी ट्रैफिक, ट्रैफिक को कहते हैं, गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो शुरू तो ट्रैफिक, पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो तो भीड़। शुरू यानी वो पब्लिक का भी तो भीड़, ट्रैक वही होती है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक, ट्रैफिक, रश, रश। TRAFFIC, ट्रैफिक, डबल एफ आगा, डबल एफ,
IC TRAFFICE, ट्रैफिक। ट्रैफिक को बोलते हैं, चाहे आप शुरू इंसानों के लिए इस्तेमाल हो तो भीड़ बोलेंगे, खलवत किसे रश कहेंगे? रश पब्लिक जी, और खलवत यानी प्राइवेसी। तो हाँ, खाली होना, रोड खाली होना, खाली रोड। खाली खाली होना, खाली होना। ट्रैफिक का माना अलग है ना? जी, ट्रैफिक मानी शुरू। नहीं, तो दूसरा ट्रैफिक का भी हुआ है। दूसरे ट्रैफिक के माना इंसानों की भीड़। अब देखिए, गाड़ियों की भीड़ हो, इंसानों की भीड़ हो, ट्रैफिक कह लो या भीड़ कह लो, एक ही बात है। और हाँ, ट्रैफिक बोलते हैं, समझ गया? क्या समझे? बोले अगर ट्रैफिक ही बोलते हैं। ट्रैफिक का मतलब भीड़ नहीं है, भीड़ है लेकिन ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। शुरू का मतलब क्या बोला अभी? भीड़ रश, USH जी। श्लोक का माना रश है लेकिन ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक को तो टांग तोड़ के बोलेंगे ट्रैफिक। भाई देखिए, एक रोड है, भर के गाड़ी चल रही है लेकिन रुकी भी तो नहीं है ना वो, तो उसे शुलूक कहेंगे। लेकिन अगर कहीं फंस के खड़ी है साहब तो ट्रैफिक। हाँ, जाम लग जाता है जब। ट्रैफिक यानी ट्रैफिक, TRAFIC। ट्रैफिक को बोलेंगे ट्रैफिक। उसके बाद है आपको नाम बोले आगा नविश्तीन हमेशुमा। उसके उसके बाद क्या वर्ड है? तसादुफ। ये आपको याद है इसको? तसादुफ का मैंने आप लोगों को बताया था, और तहसील फातिमा आपकी क्लास में बताया था, याद है? पहली किताब वाली में कब बताया था? जब तदबीर फातिमा का एक्सीडेंट हुआ था, याद है? एक्सीडेंट जी। तसा एक दिन जब उन्होंने कहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या कहेंगे? तो मैंने बताया था तसादुफ। तो तसादुफ DENT एक्सीडेंट। तसादुफ यानी एक्सीडेंट। उसके बाद है निशानी, या कह लीजिए आदरस। निशानी कह लीजिए, चाहे आदरस कह लीजिए, एक ही बात है। साइन को भी कहते हैं ना जी, साइन को भी कहते हैं ना निशानी। साइन को, सिग्नेचर्स को नहीं, साइन को, किसी सिंबल को। आदरस। भाई उसे कह रही है जो निशान होता नहीं है, निशान है फौज पैगंबर निशान। नहीं, वो निशान अलग है। निशानी और एड्रेस एक ही बात है। ट्रैफिक लाइट को ट्रैफिक लैम्प बोलेंगे। अभी रुक जाओ, निशानी और उसे चराग में वो कहते हैं शब्द, या चराग में प्रेमिस, रेड लाइट। चराग, निशानी और आदरस एक ही बात है। एड्रेस ADRES। पक्का सही है? ADDRESS एड्रेस। आदरस कह लीजिए। आदरस क्या है? वही एड्रेस है। आदरस वही एड्रेस है। लेकिन ईरानियों की खास बात है, देखिए उर्दू की और फारसी में यही फर्क है। उर्दू जबान क्यों कमजोर होती जा रही है आपको मालूम है? क्योंकि हमारे उर्दू जबान में वज़्न अल्फाज खत्म हो गया है। वज़्न अल्फाज खत्म हो गया है। वज़्न अल्फाज खत्म हो चुका है। वज़्न अल्फाज यानी अल्फाज की इजाद खत्म हो गई है उर्दू में। अब अगर दुनिया में कोई नई चीज आती है या नया वर्ड आता है तो उर्दू वाले उर्दू में उसके लिए कोई वर्ड इजाद नहीं करते। जो जिस जबान का लफ्ज नया आया है उसको उसी जबान में इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, बताइए उर्दू में कुछ नाम रखा? कुछ नहीं, भले आगा नहीं रखा। लेकिन फारसी की खास बात यह है कि भले ही वो वर्ड को, इंग्लिश वर्ड को इस्तेमाल करें आदरस, लेकिन उसके लिए जरूर होगा। लैपटॉप भले कह ले, कंप्यूटर भले कह ले, लेकिन रायाने है वर्ड, अपना वर्ड
नए वर्ड दुनिया में जितने आते जाए, जिस जबान के वो उस जबान में भले यूज कर लें, लेकिन उसके वो लिए अपनी जबान में जरूर लाते हैं जी अपने जबान में वर्ड उसके लिए वजह जरूर करते हैं, जो कि उर्दू में खत्म हो चुका है। अब उर्दू और किसी भी जबान के खत्म होने की अलामतों में से है ये जल्दी कि भाई उसमें वजह अल्फाज ही खत्म हो गया। कोई ऐसा है नहीं जो भाई जबान में अपनी जबान है, उसके लिए हर चीज, अगर कंप्यूटर उस जमाने में नहीं था उसके लिए उर्दू वर्ड नहीं था, अब है लैपटॉप तो उसके लिए वर्ड बनाइए, उन्होंने बनाया नहीं बनाया। एड्रेस खलवत का क्या माना है लिखा है? खलवत के बारे में क्या लिखा है? खाली 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 होना। मैदान, मैदान यानी सर्कल, सर्कल। अगर स्क्वायर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर। एस SQUARE स्क्वायर। जब आप एक हाई रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से, तो यहाँ पे एक सर्किल होता है, उस सर्किल को कहते हैं चौड़ाई। तो इसे स्क्वायर तो नहीं कहते हैं, स्क्वायर तो चौराहे को कहते हैं ना। तो सर्कल सर्किल बोलते हैं। सर्कल इंटरसेक्शन कहेंगे अगर चौराहा को। तो पीछे क्या कहेंगे सर्कल को? अगर एड्रेस तो ये दिया जाता है फला सर्कल पे मिलना। सर्कल तो अगर इसको फिर मैदान को सर्कल ही कहते होंगे। बोलो सर्कल। एस CI एस नहीं आएगा। S नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा सर्कल में सी है। CIRCLE। पक्का सर्कल जो चौराहों पे बहुत जगह बड़े बड़े हाईवे पे सर्कल आते हैं, उस सर्कल को कहते हैं मैदान। और इसे कहते हैं चौराहा। चौराहे को कहते हैं चौराहा चौराहा। चार रास्ता चौराहा यानी चौराहा। चौराहा चौराहा यानी चार राह फलान फला चौराहे पर मिलिए, ठीक है। कूचे, कूचे यानी गली। भले आदरस शुमा कुजाज, आदरस बेबी। मन नजदीके मैदाने इमाम खुमैनी से के रद्बशी मस चार राहे मसलन शहीद मुताहरी पूछे फला भले फला के फला जैसे मोहल्ले गए थे। पूछे यानी गली भले भले पूछे यानी गली। पूछे अमीर अनीस भले मसलन हमारे मोहल्ले का नाम है कूचा काजी गली, कूचा काजी भले पूछे यानी गली। एक होता है उसके बाद बुन बस यानी बंद गली। देखिए गली है, सड़कें होती है, इधर से निकलती है उधर को निकल जाओ, क्रॉस हो जाओ, लेकिन बात गली ऐसी होती है बस अंदर को घुस गए, बस आखिर को नहीं, बस इस गली में घर तो है, ये गली क्रॉस नहीं है, उसे कहते हैं बुम्बास, बंद गली। बस जिस गली का बंद गली जी, आगे रास्ता ना हो, इस गली से क्रॉस होकर आप कहीं और नहीं निकल सकते, अंदर जाकर घरों तक तो जा सकते हैं और आगे नहीं। और आप अव्वल वसत आखिर, अव्वल वसत, अव्वल पहला, वसत मिडिल, आखिर यानी आखिर। वसत लिखेंगे ना, वस्त लिखेंगे। वसत अव्वल, अव्वल वसत, वसत आखिर और आखिर। अव्वल वसत आखिर। अव्वल यानी फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। वसत यानी मिडिल, MIDDLE मिडिल, MIDDLE मिडिल, और आखिर को लास्ट या फिर एंड, कुछ भी लास्ट। और उसके बाद क्या है? समतेरास, समतेचाप, समतेरास यानी राइट हैंड पे जाइए, समतेरास राइट हैंड,
समते रास्त, समते रास्त। सम यानी साइड, रास्त यानी दाएं। समते रास्त, समते रास्त यानी राइट साइड, जमनी बाजू, राइट साइड, राइट साइड। और समते चाप यानी लेफ्ट साइड, समते चाप, चाप कहते हैं लेफ्ट को, समते चाप। हाँ भाई, समते चाप किसे कहते हैं? यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, बाई साइड। जी बाई साइड है, लेफ्ट साइड। भले उसके बाद मुस्तकीम, ये तो हम बता देंगे। रास्ता क्या लिखा है? सीधा राह। जी समते रास्त, समते चाप, समते रास्त, समते चाप। आपसे कोई आके पूछे बेबख्शी खानून, एक्सक्यूज मी, वेयर इज हॉस्पिटल फला हॉस्पिटल, तो आप क्या कहेंगी? भले बेरीद मुस्तकीम, समते चाप, बीमारिस्तान अबू अली सीना, जाइए सीधे लेफ्ट को मुड़ जाइए, बीमार हॉस्पिटल बीमारी अबू अली सीना। अब देखिए एड्रेस सही से समझ लीजिएगा, बहुत अहमियत, बोलचाल में ऐसी चीजें बहुत इस्तेमाल होती हैं। मुस्तकीम में सीधे जाइए, मुस्तकीम यानी डायरेक्ट ना? नहीं, मुस्तकीम माने सीधा। मुस्तकीम, बेरी मुस्तकीम, जाइए सीधे, बाद समते रास्त, उसके बाद राइट हैंड, भले मुस्तकीम, सीधे जाइए, सीधे मुस्तकीम में सीधे। अगर सिरातुल मुस्तकीम। सिरातुल मुस्तकीम। उसके बाद क्या है? मीरा साहब, आपने किसी ने आके पूछा बेबख्शी कोई हॉस्पिटल का नाम लीजिए, मसलन बीमारिस्तान अबू अली सीना गुजास्त, आप कहीं बेरीद मुस्तकीम, शुमा मुस्तकीम के रफ्ती, आप जैसे सीधे गए, बेरीद रफ्त समते चप के शुमा रसीदी, आंजा ये होटल बुजुर्ग, एक होटल है बड़ा, भले रू शुमा रसीदी पे बीमारिस्तान अबू अली सीना, तो आप पहुंच गए। मीरा साहब पहुंच गए, मीरा से पहुंच गए। जी मीरा साहब वो पहुंच गए। अच्छा, आ जाना मसलन मीरा साहब बे बीमारिस्तान अबू अली सेना, ठीक है? आ जाना। हाँ मसलन आपने पूछा, मसलन किसी ने फला हॉस्पिटल के बारे में, तो मैंने उसको एड्रेस बताया, सीधे जाइए, राइट मुड़िए, मीरा से बीमारिस्तान यानी बीमारिस्तान आ गया। सवाल मिशवत, आप जानते हैं सवाल मिशवत यानी सवार होना, सवार होता है, सवाल मिशवत। ये क्या है मिशवत? जी ये मिशवत क्या है? अगर जो आपने बताया था ना मीशे, नहीं, जब भी ऐसे कोई वर्ड में, चाहे अरबी वर्ड हो चाहे फारसी वर्ड, जब इस तरीके से कोई पूछे मिशवत क्या है, या अरबी में पूछे तो यजरबूना क्या है, तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है इसका ग्रामर के एतबार से क्या है। ये मिशवत हाल है, सवाल मिशवत हाल है। अगर इसी को हाल कंटिन्यूअस बनाना हो, दारे सवार मिशवत, सवार हो रहा है, दारे सवार मिशे, सवार हो रहा है ना, सवार होता है। उसके बाद प्यादे मिशवत, उतर रहा है, प्यादे मिशवत उतरता है। प्यादे पैदल को कहते हैं वैसे, लेकिन गाड़ी से जब इंसान उतरता है प्यादे मिशवत, प्यादे मिशवत।
प्यादे भी शवाद यानी उतर रहा है। उतर रहा है गाड़ी से उतर रहा है या सवारी से उतर रहा है। चलने में भी यूज कर सकते हैं जनाब इसे हम। हाँ, चलने के लिए प्यादे पैदल मैं प्यादे पैदल जाता हूँ। प्यादे में रवा उतर रहा है। सब प्यादे भी शवाद यानी उतर रहा है गाड़ी से। प्यादे में रवा यानी प्यादे भी शवाद यानी गाड़ी से उतर रहा है, उतरता है। और प्यादे मीरावत चल रहा है ना, प्यादे मीरावत चल रहा है जी, चलता है। प्यादे मीरावत प्यादे, देखिए प्यादे शुदा, एक है प्यादे रफ्तान। ये दोनों अलग हैं। प्यादे शुदन, प्यादे रफ्तान, प्यादे मीरावत। माशी में शक्ति रवाद, प्यादे मीरावत यानी पैदल चलता है, पैदल जाता है, चलता है या जाता है क्या चलता है, एक ही बात है। पैदल जाता है, पैदल जाता है। नविष्टि बोले अलान निकाल को नहीं आपको नाम अगर इसका मीनिंग क्या होगा? कारे में जमीन जी, कारे जमीन, कारे जमीन। आगा एक मिनट, आगा अरे प्यादे प्यादे मीरावत, एक मिनट, प्यादे मीरावत क्या कह रही है? दो लफ्ज रह गए हैं, 2 वर्ड रह गए आगा। कौन से? एक तो ये बाहर कह रही है ना, कर रहे जमीन, और एक ब्लॉक लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? बुक में लिखा हुआ है। क्या है वर्ड का नाम बताइए? कर रहे जमीन, कुर्रे जमीन जी, खाली कुर्रे लिखा हुआ, कुर्रे जमीन, जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा कुर्रे। और प्लाक कहते हैं, ब्लैक को कहते हैं जी। प्लाक नंबर, कौन से प्लाक नंबर में है आपका घर? प्लाक नंबर 23, जिसे हम क्या कहते हैं? मकान नंबर। हमारे यहाँ जो मकान नंबर होता है उसे प्लाक कहते हैं। प्लाक, प्लाक, वो तो मकान नंबर ही नहीं है ना। मकान नंबर, घर का नंबर, मकान नंबर। मकान नंबर जो होता है, जैसे हमारे घर का नाम काजी अली, फ्लैट नंबर ना था जी, मकान नंबर 30 है मसलन हमारा, तो ऐसे कहते हैं प्लाक। नविष्टि और ऊपर पूरे जी, पूरी जमीन को कुर्रा कहते हैं। कुर्रे जमीन, देखिए पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में कितने कुर्रे हैं? कुर्रे यानी 5 सैयारे, सितारे, सितारे, सैयारे, हर एक चीज को मतलब कुर्रे आफ्ताब यानी सन, कुर्रे माह यानी चांद, कुर्रे जमीन यानी जमीन, सब चीजें कुर्रे अर्ज। हाँ, कुर्रे अर्ज वही जमीन है। कुर्रे जमीन कह लीजिए, अरबी में कुर्रे अर्ज कह लीजिए। माशीन शख्सी है तो मशीन शख्सी, हाँ लिखा हुआ है माशीन शख्सी। हम सोच रहे हैं क्या हमने मशीन शख्सी यानी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल गाड़ी। मशीने शख्सी, मशीने शख्सी यानी पर्सनल। पर्सनल गाड़ी, पर्सनल कार या गाड़ी, जो भी मसलन कार वगैरह, इस सही दुरुस्त नविश्ताम। ट्रैफिक भले पर्सनल दुरुस्त नविश्ताम। आगा ओ आएगा इसके बाद, जी, एस के बाद ओ आएगा। SONAL या NOL TER, सही है SONOL जी आगा। माशीन शख्स, उसके बाद क्या है? मीरा सच का मीनिंग क्या होगा? जी, मीरा सच आ जाता है। पुर ट्रैफिक यानी फुल, पुर यानी फुल ट्रैफिक, फुल ट्रैफिक, फुल आगा ब्रिज नहीं बोल सकते इसे जी,
जैसे ब्रिज पे ट्रैफिक हो जाता है। नहीं पुर ट्रैफिक यानी वो मसलन अगर खयाबान बना बना रोड पुर ट्रैफिक यानी फुल ट्रैफिक वाला है। तातीलात। हाँ हाई ट्रैफिक या हाई क्या है TRE मासी ने शख्सी का क्या लिखा है आपने? पर्सनल कार PERSONAL भले पर्सनल कार फुल ट्रैफिक फुल ट्रैफिक यानी फुल ट्रैफिक बड़े फुल ट्रैफिक। उसके बाद क्या है तातीलात छुट्टियां तातीलात यानी छुट्टियां तातील छुट्टी तातीलात छुट्टी है जमा तातीलात यानी छुट्टियां जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉलीडेज। बाजी। जी उसके बाद क्या है? बाजियास। कुछ याद है बाजी बूझा कुछ बहुत में से कुछ बाजियात इंसान। हाँ गजा ने भी पसंद बाज लोग खाना नहीं पकाते बाजियात यानी कुछ बाजियात यानी कुछ बहुत में से कुछ जी बाजी यानी कुछ बाजियात बहुत कुछ अर्ज का अलग से मीनिंग दिया हुआ है। नहीं अलग आती थे बाजियात एक साथ इस्तेमाल करता हूं। बाजियात दुख्तर हा गजा मी पसंद बाज लड़कियां खाना पकाती है बाजियात दुख्तर हा खलाबान अस्तर बाज लड़कियां बाज जैसे एक ही के बाद जमा आता है ऐसे बाजियात के बाद भी जमा आता है। मसलन बाजियात मसलन दुख्तर हा खलाबान हस्तान यानी बाज बहुत लड़कियों में से बाज लड़कियों में से आज के माने से लड़कियों में से कुछ पायलट हैं या बाजियात आबो हवा तो उर्दू का वर्ड है मतलब उर्दू आबो हवा फारसी का वर्ड है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है यानी भले जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेदर। जी वेदर नहीं क्लाइमेट स्पेलिंग CLIM क्लाइमेट कहते हैं ना मुझे क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा क्लाइमेट का मसला अगर MATE क्लाइमेट यानी आबोहवा जैसा कहते हैं ना कि फला जगह की मसलन क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया जी। इब्तिदा शुरुआत में शुरू में इब्तिदा यानी शुरू इब्तिदा में कुनी मस फला से शुरुआत करते हैं। सिपास यानी याद है आपको सिपास मैंने आपको इस्तेमाल करता था सिपास उसके बाद मस बाजार मिलावम सिपास बे मदरसे मिलावम उसके बाद सिपास यानी उसके बाद किसी काम के बाद को सिपास उसके बाद क्या करते हो सिपास दर्स मिखाना सिपास उसके बाद भाई ये वर्ड हो गए यार और का सर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सिपास के बाद सफर भी कुनाद सफर करता है ना सफर करता है ट्रैवल करता है सफर करता है। अभी सफर इंग्लिश वाला सफर नहीं इंग्लिश वाला ट्रैवल और वो सफर कैसे SUFFER वक्त तमाम सफर करते कर रहा नहीं दारत सफर में कुनाद है वो सफर कर रहा है सफर करता है। खेल ममनून अजीब के शुमा बेमान भले इत्तला दादी वो गुफ्ती के वक्त तमाम शूद मनने में दुनिस्तम वक्त तमाम शूद खेली ममनून इमरु इंशाल्लाह पर्दा में खानीम बेबीन निकाह कुनीत इन हमें भले ये वर्ड हमने लिखी है
कल काम भले इसकी इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे बेबिन कार्य इसे कहते हैं कार्य, उसमें अलग अलग मुल्क शहर गाँव भी आते। भले वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फरजहम